yet very cunning way of the mind. It sees something is a threat, it labels it as impractical, and then says it can't be done because it is impractical. Is it impractical, or have you labeled it impractical? What came first? First you label it impractical, then you say it can't be done because it is impractical. Good. He's a bad person. Why don't you go near him? Because he is bad. Now, is he bad, or have you first labeled him as bad? So there's a question that we tend to not to break the pattern of our habits because we fear. And then he says that let the fear flower in this post. So can you start first of all talk about habit and then understand the question as well? Habit is known. Whatever you know, what is within knowledge, past. Whatever you know, you want to do it repeatedly. Pattern. The mind finds security in that. I have already known it, and going through it, I didn't evaporate. I know this route, and traveling this route since the last 20 years, I was alright. So what do I want? Take that route again for the next 20 years. There is safety. I didn't evaporate in the last 20 years, so I'll be secure for the coming 20 years as well. Using that route. This is habit. And what am I now? More importantly, what am I now? The user of that route. Now the user of that route will die if he changes the route. So habit will ensure its perpetuation because now habit is ego. Now habit is your identity. Who am I? The user of that route. This user will die if the route changes. I don't want to die. So we can answer like this: who am I? I am a bundle of different habits. I am a bundle of different habits. That's a good way to approach it. Yes. So who am I? The one who speaks this language, the one who orders all these things in the restaurant. That's what I am. I change the items on my plate and I die. I change the stuff that I order and I am no more. I don't want that to happen. I am deeply concerned with my security. That's why he said habit and fear go together. आपने इस पे फेसबुक पे जो डोंट ट्राई वाला डाला हुआ था, नथिंग विल हैपन इफ यू ट्राई, उसमें आनंद का एक क्वेश्चन आया था कि प्लीज एक्सप्लेन दिस और तो उसमें यही था एक जवाब कि फॉर अनंत थिंग्स अनंत इज इक्वल टू ओरेटर, स्टूडियस बॉय एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड ओरेटर कैन नॉट प्ले द कैरेक्टर ऑफ अ काउ. When you try to play the character, when cow comes, the orator dies. The orator doesn't want to die. That is the only difference between ego and the self. The ego doesn't want to die. For the self, there is nothing called death. For the ego, there is a lot of death. And it doesn't want to die. For the self, there is not even the question of death. It doesn't die. It can't die. The self के नाम से नहीं है. Cow self or the orator self? इतना precise नहीं. And how does that labeling happen? Like you label something by not going close. When you go close to something, there is no need to label. A label is essentially a recall. You see, if I label you as bad, am I inventing the word bad? If I label Kunal as bad, did I invent the word bad right now? It was there in my mind with a specific image. Now I don't want to really make the effort of understanding what is this thing.
So what do? I pick up something from my storehouse and I throw. तमोगुण यही है. मेहनत कौन करे? लेबल लगा दो ना. बंदी है, ये क्या काम करेगी? लेबल लगा दो. मेहनत कौन करे जानने की कि कर भी सकती है कि नहीं. ये मेहनत कौन करे? यार ये तो इस कॉलेज का, इसी का ही बात समझ में आएगी. मेहनत कौन करे जानने की? लेबल लगा दो, इस कॉलेज का है. सो लेबलिंग इज अ फाइन एक्सक्यूज फ्रॉम रियली गोइंग क्लोज एंड फाइंडिंग आउट. Don't find out, just label. It's more dangerous if you stop labeling the other. I mean, the label is on you. I'm just a girl. How can I do it? So right So away, that is a relation between habit and love. Where there is love, there can be no labeling, and every relationship is a label. Because in love you go extremely close, and then labels do not apply. In habit, there are only labels. Our relationships are habits. So he said, there is just habit, no good habit, no bad habit. Yes. अभी हम जैसे हैं, उसमें अटेंटिव होना तो एक हैबिट बनानी चाहिए. ये वर्ड प्ले है यहाँ पर. अटेंटिव हैबिट नहीं, अटेंटिव होना हैबिट नहीं हो सकती. ये वैसी ही बात है कि तुम कहो कि स्क्वायर सर्किल. अटेंशन तो हैबिट को नष्ट कर देता है. अटेंशन की हैबिट नहीं डाली जाती. होश की कोई हैबिट नहीं होती. स्टार्ट में से अभी मेरे लिए एक हैबिट ये बनानी पड़ेगी कि आई वुड नॉट हैव एनी हैबिट. एक पैटर्न बनाना हो कि आई विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ. इसको हैबिट कहना नहीं चाहिए, ये होश है. ये पैटर्न नहीं है, ये होश है. हो सकता है तो फिर कंटिन्यू होता है. हम नहीं देखो, अगर तुम इसको हैबिट कहोगे ना, एक हैबिट कभी दूसरी हैबिट को काटती नहीं है, उसको सिर्फ नाम बदल देती है, उसका तरीका बदल देती है. तो मुझे उदाहरण दो कि कैसे एक हैबिट दूसरी हैबिट को काट सकती है. वो सिर्फ उसका तरीका बदल देगी. मैं देर से सो के उठता था, हैबिट. मैं जल्दी सो के उठने लगा, अनदर हैबिट. अभी भी सिर्फ नाम बदला है. एक गुड एक बैड दिखने में लग रहा है, पर हुई अभी भी वही पुराना काम ही चल रहा है. हो सकती है अगर एक बंदा है वो एक ही बेंच पे आके हमेशा, एक स्टूडेंट है वो एक ही बेंच पे आके बैठता है, एक ही इंसान के साथ बैठता है डेली बेसिस पे. अब वो एक इस बात का पैटर्न या हैबिट बना ले कि एवरी सिंगल डे आई विल सिट ऑन अ डिफरेंट बेंच एंड विद अ डिफरेंट पर्सन. उसको ये याद रखना पड़ेगा. नहीं, मगर याद रखना पड़ेगा, वो तो हल्का सा रहेगा. Habit is always the continuation of the same. You cannot have the habit of ordering the new. The new will never be incorporated in the habit. मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ, तुम ये हैबिट नहीं बना सकते कि मैं रोज़ एक नए बंदे के साथ बैठूंगा. नहीं, उस पर फोर्स करना पड़ेगा आपको. फोर्स भी कर लो तो भी नहीं बनेगी. मैं बताऊँ क्या होगा. एक बार दो बार किसी के साथ बैठेगा, नए के साथ, रिपीटिशन. जो पसंद आ गया उसके साथ चिपक जाएगा. फिर से जो पसंद आ गया नयों में, उसके साथ चिपक जाएगा. नया कभी हैबिट का हिस्सा नहीं हो सकता. तुम जिसकी बात कर रहे हो उसको होश बोलो, हैबिट नहीं. वो मैं समझ रहा हूँ क्या है, पर वो होश है, हैबिट नहीं पर है. आपका मन बहुत कर रहा है, मगर आपने कुछ ऐसा कर लिया, आपने फ़ोन पे स्क्रीन सेवर ऐसा लगा लिया या किसी ऐसे को अपॉइंट कर दिया कि तू मेरे को रिमाइंड कराएगा. वो स्क्रीन सेवर हैबिट नहीं है, वो होश जगा रहा है. वो होश जगा रहा है. हैबिट का अर्थ है सोए रहना, होश का अर्थ है जगना. देखो प्रक्रिया क्या हुई है. जब तुमने स्क्रीन सेवर लगाया था तुम तब भी जगे हुए थे. जब स्क्रीन सेवर देखा तब फिर से जग गए. इन दोनों के बीच में जो था वो हैबिट थी. दो ही घटनाएं हुई हैं ना. स्क्रीन सेवर लगाया और फिर कभी स्क्रीन सेवर देखा. ये दोनों ही काम जागृति में हैं. इनके बीच में जो है वो हैबिट है. ये दोनों हैबिट से बाहर है. ये दोनों हैबिट से बाहर है. वैसे समझ लो जैसे एक गिलास में पानी भरा हुआ है, इस तरफ भी पानी है और इस सिरे पर भी पानी है, पर गिलास के दोनों सिरे पानी से बाहर है.
बीच में हैबिट घुसी हुई है, पर ये जो हो रहा है ये हैबिट का हिस्सा नहीं है। अच्छी आदतें वाकई नहीं होती हैं, आदत ही बुरी है। जैसे बताया जाता कि थोड़ा कम कर लो, अपने खुद को थोड़ा टाइम दो, इन्हें मेडिटेट करो। और मेडिटेशन तो हम लोग पहले हैबिट की तरह शुरू करते हैं, जैसे फोर्स आ सकती है और मे बी ना रेगुलर। वही बात यहाँ भी लागू हो रही है ना। जिस क्षण में फैसला किया कि मेडिटेशन अच्छा है, क्या वो एक हैबिचुअल क्षण था? क्या उससे पहले भी मेडिटेट करते थे? कुछ नया घट रहा है ना जीवन में कि अब आज मैंने क्या फैसला किया, तो ये हैबिट तो नहीं थी, ये एक नया होशमंद क्षण है। ठीक, फिर एक क्षण मेडिटेशन का भी आया, वहाँ पर हैबिट कंटिन्यू हो रही है क्या? एफर्ट तो है ना मेडिटेशन में। जैसे 1 घंटा अपने लिए निकाल रहा हूँ, उस मेडिटेशन के प्रोसेस में जो होगा वो नया होगा, लेकिन ये जो बैठना है बाकी चीज़ों को छोड़ के मुझे अब ये बैठना है, ये एक हैबिट फॉर होगा। एग्जाम्पल राइटिंग फॉर दैट मैटर, जो मेडिटेशन में होगा वो नया होगा, उसमें मेरा हक नहीं है, वो अधिकार नहीं है मेरा। लेकिन उस प्रोसेस में बैठने के लिए कि इतने सारी चीज़ों की सेल्फ डिसिप्लिन नहीं कह लीजिए स्टार्ट में। हाँ, वो हैबिट बाद में अपने आप अंडरस्टैंडिंग से आएगी, लेकिन स्टार्ट में तो मुझे वो हैबिट बनानी पड़ेगी। तुम समझो ना इस बात को। जब तुम कह रहे हो मैं बैठ रहा हूँ, जिस क्षण में याद आता है कि अब बैठना है, नहीं अभी नहीं याद आ रहा मुझे। हाँ, तो फिर कैसे बैठ गए? टाइम सेट कर लिया। हाँ, टाइम सेट लिया, अलार्म लगाया, जो भी किया। ठीक है, तो कैसे बैठ गए? उस अभी तो फोर्स करके ही बैठा हूँ। फोर्स कैसे कर दिया? कुछ काम साइड में कर दिए, कैसे कर दोगे? हाँ आप और होश में करोगे, पर ये हो सकता है उस समय का होश है, पहले टाइम जब आया था, जब आपने कहा। अभी काम साइड में कब करा? अभी अभी कैसे करा? अभी कैसे करा? तुम कुछ कर रहे थे, वो सब अचानक साइड में करके मेडिटेशन में कैसे बैठ गए? क्योंकि एक अलार्म क्लॉक था जो मुझे याद दिला रहा है। उस अलार्म क्लॉक ने क्या करा? मुझे होश में आया। बस वही ज़रूरी है ना। अब ये रोज अलार्म क्लॉक सेट करना है मुझे। ये जब होश सेट में कर होगा। रहे हो, वो कब, वो मोमेंट होश कैसा में है? हो रहा है। तो जो भी इम्पोर्टेंट है वो किस में हो रहा है? होश में ही होगा। अलार्म क्लॉक सेट करना भी होश में है और मेडिटेशन भी होश में है। तो असली तो यही है मैं ना। नहीं कह रहा हूँ हैबिट तो होगी, लेकिन वही एक हैबिट है जो होश में सेट की जा रही है, एक बेहोशी में की जा रही है। बेहोशी में कैसे सेट करोगे? बेहोशी में हैबिट है जो मैं सिगरेट पी रहा हूँ। हाँ। बेहोशी में एक हैबिट है, रोज सुबह मुझे पेट क्लियर करने के लिए चाय पीना है। रोज़ तुमको ये हैबिट हो सकती है, पर होश की हैबिट कैसे डालोगे? फैसिलिटेट करूंगा कि होश उस समय आ सके। होश की The हैबिट alarm brought me to that state. अलार्म सेट कैसे किया? वो होश में किया था, और- और उस सिचुएशन के लिए किया था ना, when I'm sleeping. व्हेन आई एम यू आर स्लीपिंग, राइट? State is असली काम क्या था? उसको सेट करना ना, उसका सेट करना और उसके इफेक्ट करने से, की समझ। मगर बस सेट करना, सेट करना। सारा प्रॉब्लम तो इस प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म के आने का था ना, जिसने अलार्म ने वो काम करा जिसमें सोया हुआ था। वो अलार्म किसने सेट करा? तो मैं नहीं करा था, तुम आपने होश में करा, होश में करा बस वही काफ़ी है। पर ऐसी स्टेट के लिए किया था मैंने, जो आएगी, हैबिट है, जो भी आएगी। आएगी, हैबिट है, ये पक्का हैबिट है, उसको रहने दो। तो अपने होश में अलार्म सेट करते चलो, फोकस इस पे रखो। अलार्म सेट करना भी तो एक हैबिट ही है ना। आप हैबिट में अलार्म नहीं सेट कर पाओगे ना। आप हैबिट में अलार्म कैसे सेट कर पाओगे? आप नाच गा रहे हो, रात के 2 बज गया है, आपको पता है कि 2:30 बजे सोओगे और आपको सुबह 5 बजे उठना है। क्या आप बेहोशी में नाचते गाते अलार्म सेट कर दोगे? अचानक होश आएगा उठने का, फिर अलार्म सेट करोगे। बेहोशी में अलार्म कोई नहीं सेट कर सकता। सुबह 5 बजे अलार्म सेट नहीं हो सकता। हाँ, बेहोशी में नहीं अलार्म सेट कर पाओगे। See, what you are talking of is as impossible as saying wakefulness is a part of sleep. Now, wakefulness cannot be a part of sleep. Yes, before sleeping, you can ensure that you will wake up. But that ensuring was done when you were already awake. You slept after that. आपने अलार्म के सोने के बाद सेट करा था। आपने अलार्म तब सेट करा था जब जगे थे। अभी जगे हो ना, तो अभी से मतलब रखो, अलार्म लगा लो, बस इतना करो। अलार्म लगा लो अपने लिए अभी।
और अलार्म अलग तरह के होते हैं। नींद वाला अलार्म तो बहुत अच्छा होता है, फिजिकल है, कान में कुछ आवाज़ जाएगी और वो झंझना देगी ब्रेन को उठना पड़ेगा। जीवन के अलार्म तो बड़े विविध होते हैं और बड़े होश से ही निकलेंगे, पूरी टेक्नोलॉजी है वो, और तुम्हें बहुत सोच समझ के अलार्म बनाने पड़ेंगे, बड़ा वो हुनर है। गहरे होश में ही वो अलार्म सेट हो सकता है। वही मेडिटेशन टेक्निक कहलाती है, वही सारा गुरु का ज्ञान है। गुरु वही है जिसको ये अलार्म सेट करने आते हो। वीडियो में क्वेश्चन ने एक बार कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी कला, सबसे बड़ा आर्ट है अपने लिए, कुछ ऐसा ही कहा था कि अपने लिए ऐसी टेक्निक डेवलप करना कि तुम होश में दोबारा आ जाओ। दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट है। नो डाउट अबाउट। सर आपने बताया कि ईगो से कंटिन्यूशन चाहती है कि कंटिन्यू विद द हैबिट, सो बट स्टिल वी एज अ ईगो वी वांट कि हमारे हैबिट्स कम हो जाएं। दैट कैन नेवर हैपन, दैट कैन नेवर हैपन। एक बार MIT में एक ने पूछा था, हाउ कैन आई गेट माई गर्लफ्रेंड बैक? टिल द टाइम यू आर यू, the reasons for the breakup will remain the same. Till the time you are you, the habit cannot go away. But what is it that we want? हम वही रहें जो हैं, आदत से मुक्ति पा जाएं। हो नहीं सकता। आदत से मुक्ति पानी है तो मन का पूरा ढांचा बदलना पड़ेगा। तुम वही रहो और आदत छूट जाए, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम आदत ही हो। तुम आदत के अलावा कुछ हो नहीं। तुम्हारे तुम रहते आदत कैसे बदल जाएगी? आपको पूरा बदलना पड़ेगा, पूरा। Also यहाँ पर लिखा है कि the fear should cover, you let the fear cover, वो किस सेंस में है, कैसे? आई एम नॉट श्योर कि किस सेंस में बोला है। आई हैव टू हियर। So लास्ट में ही कहा था ना कि जब भी आपका हैबिट होगा तो आप इसलिए हैबिट नहीं छोड़ पाते। वहाँ तक समझ गया। ये फियर फ्लावर ही बोला इन्होंने, एग्जैक्टली यही बोला था। so that you can मैंने सुना नहीं है, कह नहीं सकता। बाय दिस ही मीन्स व्हेन द फियर इज टेकिंग शेप, एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ। ये पूरी बात है। यहाँ पे फ्लावरिंग से मतलब है कि जब वो अपने आप को व्यक्त कर रहा होता है तो उसे देखो। Come close to the sorrow. हाँ, विदाउट ऑब्जर्विंग फियर यू विल नॉट अंडरस्टैंड फियर। इनमें एक चीज़ और थी जो एक पूरा फिजिकल फियर और साइकोलॉजिकल फियर अलग अलग है। वो वही है कि जब तुम कुछ देखते हो, तुमने बात करी थी ना। हाँ, हर फियर तो साइकोलॉजिकल, हर फियर तो साइकोलॉजिकल ही है, लेकिन प्रकृति में भय का, इंस्टेंटेनियस भय का उपयोग है। वही वो कैमरा और सांप वाली बात। जब सांप सामने है तो तुम्हारी प्रकृति ने है, फियर ही वो भी, पर प्रकृति ने तुम्हें एक सेल्फ प्रिजर्वेशन, एक सेल्फ से मतलब ये वाला सेल्फ, बॉडी वाला सेल्फ, उसके प्रिजर्वेशन की इंस्टिंक्ट डाली है कि यहाँ दिख गया तो खट से पाँव खींच लो, विच इज़ ऑल राइट। अनलेस कि तुमने तय ही कर लिया है कि शरीर ही ख़त्म कर देना है, तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है कि शरीर को बचा लो। पर एक दूसरा है जो मन में बैठा है, जिसका शरीर से कोई लेना देना नहीं। किसी ने सवाल पूछा था एक ज़ेन मॉन्क से, अभी बहुत शायद सुजुकी थे, कि हाउ मच ईगो डू आई रियली नीड? तो उनका जवाब था एज मच एज प्रिवेंट्स यू फ्रॉम गेटिंग अंडर अ बस। इतनी ईगो रखो कि भैया बॉडी है, इसको बचाना है, आई एम दिस बॉडी, बस के नीचे नहीं आ जाना है। अगर एकदम ही ईगोलेस हो गए तो कहोगे आई एम नॉट द बॉडी और बसी के नीचे घुस जाओगे। तो इतना ही फियर रखो, इतना फियर ठीक है। हाँ, अब महानिर्वाण का फैसला कर लो, उस दिन अलग बात है, पर इतना फियर रखो कि शरीर बचा रहे बस, लेकिन उतना ही, उससे एक धेला भी ज़्यादा नहीं। शरीर बचा रहा है, इतना फियर ठीक। तो जब जल समाधि लेते हैं क्या ईगोलेस हो जाते हैं? उनको पता नहीं, मैंने देखा जल समाधि पता नहीं। पर वो जो फियर का मोमेंट होता है, that is so instantaneous. It just comes and Yes, you just that is only when it is really physical. When it is psychological, it is never instantaneous. like In for, fact, it lingers and lingers and lingers. for me it is when I see a traffic policeman. I have had some bad experiences. So the moment I see one, there is
this something that sort of. But does it go away with the traffic policeman? Yes, it does. The moment he disappears, it goes away. Yes. Watch it again. But हर बार होता है. नहीं होता है. मैं जानना चाहता हूँ कि चला जाता है क्या? Does it really go away with the policeman? I suspect it would be lingering. पुलिसमैन की इमेज जब सामने आती है तब वो दोबारा प्रोड्यूस हो जाता है. पर उसके जाने के बाद भी हाँ? एक ट्रैफिक आपको दिखा तो ये भी दिमाग में है अगले पे भी मिल सकता है. नहीं, no. अगले पे भी मिलेगा. नहीं, ये नहीं होता है. Only the sight of a. नहीं जैसे यहाँ पे होगा. This is little impossible to have that fear only at the sight of physical sight. See, it is understandable that if he is running towards you with a gun, No, but there is always a possibility he might stop the car and ask me for something. but is that happening when he has actually stopped the car? No, but he might. He is in close This position. might is in time. The four-way This is coming. might is in time. Hmm. So it is not instantaneous. No, but the moment I see, I have this like. It starts then, but it lingers. Okay. That's what I am saying. Then it is psychological. But the moment he's gone, it's like. It's good if it does not remain after him. But if it is psychological, chances are it will remain even after he is gone, in some subliminal way. I'm not aware. So that's why watch it. Watch it. ऐसा तब भी पॉसिबल है जो आप गाड़ी निकाल ही रहे हो. हाँ कहा ना कि he might issue a challan. He might issue a challan. So that might is in time. Is he issuing a challan right now? In time. तो वो लिंगर तो कर ही रहा है. कम लिंगर कर रहा है, बहुत अच्छी बात है. जो इंस्टेंटेनियस है उसको फियर बोलना भी नहीं चाहिए. उसको फियर, क्योंकि फियर थॉट है. इंस्टेंटेनियस में थॉट नहीं होता, या इतना महीन होता है कि उसको फियर ना कहो तो भी चलेगा. Like you get to know that you are getting scared. मतलब That's डर- after that. डर लग रहा है. That's after that. नहीं, जब डर लग रहा है तब भी. Now, when it is real fear, then you will not know you are scared. You will just act. When the fear is purely physical, then you will not even know that you are afraid. You will just act. In front of a lion, uncaged lion, you will not know you are afraid. You will just act. तुम ये बोल भी नहीं पाओगे कि मैं डरा हुआ हूँ. शॉक बाद में लगेगा. हाँ, बाद में हो सकता है जब सब कर लो, बच गए अगर, तो हो सकता है फिर शॉक से मर जाओ कि बच कैसे गया. हाँ 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 हाँ. अहंकार दो तरीके से काम करता है यहाँ पर. एक तो ये कि जो ये परसिस्टेंट फियर है वो तो है ही ईगो, कि आपको सोच सोच के अहंकार को अपने तगड़ा कर रहे हो. दूसरा कि एक प्योरली फिजिकल चीज़ है. अब मैं इसके ये कर दूं और इसकी आँख झपक जाए और ये यूं कर ले, और फिर ये बाद में कहे मैं कैसा कायर था कि मैं हट गया. ये भी अहंकार है. ये भी अहंकार है. ठीक है तो क्या हो गया. ठीक है, ये जो था ये वही था बिल्कुल कि सामने से ट्रक आ रहा है, अचानक मोड़ से मुड़ गया वो, और आपने एक शार्प कट मारा. इसको फियर बोलोगे क्या? इसको फियर बोलोगे? आप जा रहे हो और इधर से एक निकल पड़ा और आप तेज़ी से कट मारते हो गाड़ी को, तो इसको फियर बोलोगे क्या? So that is purely physical. दैट इज़ प्योरली फिजिकल. एंड फिर वही बात है कि Like the close shave off जो होता है like you. हाँ, like while you are मतलब driving. बॉडी रखनी है तो ठीक है. अब ये हुआ भी था शिवपुरी में जो पानी में कूदने वाला सीन हुआ. हाँ उस मोमेंट में नहीं हुआ, जब बच गए उसके बाद कर पाते थे. हाँ बचने के बाद फिर कर पाते.
something about that is complete freedom, he says, and then he says something, then we shall know how to deal with the possible. इनके लिए पॉसिबल का एक ही अर्थ है, द सेल्फ. दैट इज द ओनली थिंग ही विल कंसिडर एज वर्थ बीइंग पॉसिबल. एवरीथिंग एल्स इज नथिंग. डील विद द सेल्फ मतलब नोइंग द सेल्फ. डील विद द पॉसिबल, नोइंग द सेल्फ. Hopes, beliefs, he says something and attaches it to deep agony. डीप. Deep agony. So there's two types, there's physical habits and there's the other deep rooted habits in the psyche which hopes and believes. हाँ, तो ये इन्होंने बड़े पते की बात ये बोल दी है यहाँ पर कि शरीर की जो हैबिट होती है वो दिख जाती हैं, कुछ खाने की, कुछ पीने की, ये सब तो दिख जाती हैं. मन की हैबिट नहीं दिखती हैं. तो कृष्णमूर्ति एक बड़ा सही कह रहे हैं, उम्मीद और धारणाएं मन की आदतें हैं. तो उन्होंने एक लाइन खींची है, शरीर की आदतों और मन की आदतों के बीच है, समझाने के लिए ये. और कह रहे हैं कि उम्मीद क्या है, मन की आदत है. मन यही करता है हमेशा. धारणाएं पीछे से आती हैं, उम्मीद आगे की होती हैं, मन इन्हीं में जीता है. बढ़िया.